Good afternoon to all of you. So, as today is a lab session, so you all know the format, what we are going to do. So, ready with your laptop and software, and those don't have the laptop and software, ready with a pen and uh, copy. And just a minute, I'm trying to find the syllabus, and then we are going to start our topic. Okay, fine. So, first program for today we are going to do in Python. That is, write a Python program. Write a Python program to find the sum of array. Write a Python program to find the sum of array. So, am I clear to all? What is the first problem today? Write a Python program. Write a Python program to find the sum of array. So how to proceed for this particular problem? What is the process? Anyone tell me? Anyone? Can anyone tell me how to do this? So don't have any idea. Tell me the basic idea how to do this. Forget about Python. Tell me the basic that how we can do this. So anyone cannot tell me that how we can do this. Where an initialize array. Okay. Then hello. Yes, Preeti, tell me what is A the stable is so first step declare an initialize array. okay. Then Sir, some variable is used okay. and sir loop is you add any for example for loop. Okay, you can do that for loop. So, okay, so let me first take your codes. So, try to do it. So, the program is write a Python program to find the sum of array. Write a Python program to find
the sum of array. So do it first. You people start doing it, and then I am going to check the code. If there is any problem, then I am going to show you the code and the output. So first do it yourself. Write a Python program to find the sum of array. Write a Python program to find the sum of array. Write a Python program to find the sum of array. So this is my first problem. So start doing it. There will be a 10 minutes timing window, and then I am going to check one by one. Write a Python program to find the sum of array. Write a Python program to find the sum of array. So when you people are done with the code, so raise your hand so that I can check your code and output. Okay. So when you are done with the code, raise your hand so that I can check your code and output. Okay. So I am waiting for more than 6 to 7 minutes more, and then I am going to check the code. Okay. And here I am sharing a link into the chat box. Okay. Here I am sharing a link into the chat box. You can find a book there. You will find a book there. This book will help you people to know about the programming knowledge of Python and data science. So sorry. So there is a book I have shared, that is the book from Joel Grast, that is on data science. Okay. So here how to do the programming in Python. How to do the programming in Python. What are the functions? What are the keywords? How to use these? Some examples are there. So you people can take it as a reference. So you people can take it as a reference. This is a Google Drive link. This is a Google Drive link. You people can go and download the book from there also. Okay. So for your reference, I am sharing it. I will share it in the group later on. First, I would like to share the book here, those who are attending the classes. And then I will later on share it in the group. So when you people are done with the code, tell me. When you people are done with the code, tell me so that I can start to check. And if there is any problem, if there is any doubt, then also tell me so that I can uh, refer you. So the program I am repeating again, the program is write a Python program to find the sum of an array. Write a Python program to find the sum of an array.
So when you are done with the code, tell me so that I can start to check. Done, sir. Okay, so done by Pallavi, have raised your hand, and those who have done, raise your hand. Only Pallavi, I can see that only Pallavi and Suchitra have raised your hand. So I will just wait for 1 or 2 minutes so that rest of the participants can do. And those who are doing in their copy and whatever the process, you all know that those who are having the laptop facility with the software, they will share the screen, and those who are not, they will take a snapshot and send me the snapshot picture to my WhatsApp. Then I can check. Okay. So I will just wait 1 or 2 minutes more. So I think most of you will have done it. Most of the people have done it. So I am going to check the code one by one. Before that, I am going to do it once from my side. Okay. So here is the problem. Answer equal to sum equal to num. Recurrent input. Okay, so let me start checking the code one by one. So first I will start with Pallavi. Pallavi, show me your screen and the output. Show me your screen and the output. Okay. There is The one. screen share is disabled. Yes, yes. Now I've enabled it. You can share the screen now. Okay. So Pallavi have taken an array defining some value of sum into the 0 for I in array sum equal to sum plus I. Okay. Then the sum. Okay, fine. Run the code. Okay, okay, okay. Okay, fine, fine, Pallavi. Okay, thank you, Pallavi. Next, we will move for Suchitra Giri. Suchitra, Yes, sir. The screen is visible. yes, Suchitra, screen is Hello. visible and I can see the code. Okay, run the code. Okay, 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 fine, Suchitra. So today you are doing on some different platform because in my No, previous sir. classes, Ideally. okay, so you are doing ideally, but I think in previous classes you are showing me some another platform. No, 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 no. Sir, Oh, ideally. okay, okay, fine. Okay, so okay, it's okay, no issue. Okay. Mm. Next, Preeti Kumari, Yes, sir. show me the screen and output. Sir, screen is visible. Yes, yes, screen is visible. Yes, Okay. sir.
Okay, fine. Okay. Show me the code output. Sorry, the code is there. Show me the output. Run the code Okay, again. sir. Sir. Okay. 4, 2, 6, 8, and 10. Okay. Okay, fine. You can stop your share screen. Okay, sir. Next, Nishu Kumari. Okay. Okay, fine. Okay, Nishu, run the code. Okay, fine. Okay, okay, Nishu. Thank you, Nishu. Then Dolly. Okay. Okay, okay. Fine. Okay, so you have array, defining the function of array. Okay. Okay, okay. So thank you. Okay. In most, okay, thank you, Dolly. Now the thing is that in most of the cases I have got from also Sheetal. Sheetal have sent me the codes. Okay, fine. So Sheetal, I have a question for you. Can you describe the method 2 that you have written there? Whatever the things. So can you describe the method 2 process? Sheetal. Yes, sir. So kindly describe the process of method 2 to me that you have written there. So पहले इनपुट वैल्यूज लिए हैं लिस्ट में. Go on, I am hearing. यस सर. तो पहले एक ड्राइवर फंक्शन डिफाइन किए हैं, उसके बाद What is the इनपुट driver वैल्यूज function? What is a driver function? I don't know. Then why have you written the driver function there when you don't know? I am going to ask you one more question, Sheetal, that whether you have done it by yourself or you have copied. तो गूगल के हेल्प से लिखे हैं. So here the thing is, don't try to copy, because if you are copying, then your brain will not perform. Your brain will not work. मैं यहाँ पे आप लोग को इसलिए दे रहा हूँ, गूगल पे तो सारे के सारे कोर्स आप लोग को मिल ही जाएंगे, फिर तो क्लास करने का कोई फायदा नहीं है, फिर आप लोग सीख भी नहीं पाएंगे खुद से ना. तो आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए. तो मेरा तो फिर यहाँ पे क्लास लेने का फायदा नहीं है. डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवेयर फ्रॉम द कोड. डोंट ट्राई टू कॉपी द कोड फ्रॉम एनीवेयर. जितना आपको आता है आप उतना कीजिए. मैं उससे हैप्पी रहूंगा कि आपको इतना आता है, आपने इतना तक किया है. मुझे आउटपुट या दिखाने के लिए आप कहीं से कॉपी करके मुझे मत भेजिए, तो उससे मुझे कुछ फायदा नहीं है. मैं पकड़ सकता हूँ, ठीक है ना. तो इसलिए मेरा मेरा आप सबसे सजेशन है, आपको जितना आता है आप उतना तक कीजिए. जितना नहीं आता है फिर मैं सिखाऊंगा. जितना तक मुझे आता है, जहां तक मैं जानता हूँ, मैं उस हिसाब से आप लोग को सिखाने की कोशिश करूंगा. और गूगल से कॉपी करके आप लोग मुझे मत दिखाइए. तो उस पर मुझे मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई लॉसेस भी नहीं है. फायदा या लॉसेस है तो आप लोग का ही है. सो डोंट ट्राई टू कॉपी द कोड. डू व्हाट यू नो. आपको जितना आता है आप उतना तक ही कीजिए. नहीं आता है तो आप बताइए, मैं आपको समझाऊंगा क्या है. सो फिलहाल मैं आपका ये जवाब दे दूं कि ड्राइवर फंक्शन आपने जो यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपको देख सकता हूँ कि ड्राइवर फंक्शन बोल के आपने मेंशन किया. आप अगर ये मेंशन नहीं करते तो मैं ये सवाल आपसे नहीं करता. सो ड्राइवर फंक्शन, इट इज अ फंक्शन मेड फॉर particularly in Python that helps us to run something. So
फर्स्ट ड्राइवर फंक्शन वी कैन क्रिएट इट, हम इसे खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, और ऑल्सो हम लोग इसको सम डिफाइन भी रहता है. So it is a software interface or an hardware interface that is providing a connection between each other, enabling the operating systems also to connect between the software interface and the hardware interface. Okay, so that is called a driver function or the operation of some driver function. So जब आप कुछ लिख रहे हैं तो पहले उसको पता कर लीजिए कि क्या चीज है. Okay, fine. So okay, no issue, शीतल, don't worry about that. आप मुझे दिखाने के लिए भेजे, मुझे कोई इशू नहीं है. मैं चाहता हूँ आप लोग करें, खुद से करें, जितना आपको आता है उतना मुझे दिखाइए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ से पहले से सीख के बैठे नहीं है. मैं भी कोई डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ. मैं भी जितना कर रहा हूँ मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए मैं पहले खुद कर लेता हूँ, मैं फिर आप लोग को दिखाता हूँ. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया, हर एक के प्रोग्राम पे सब लोग ने अपना प्रोग्राम पे एरे को अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है, कि हर एक ने अपना एरे खुद डिफाइन किया है. तो मैं थोड़ा प्रोग्राम को अभी चेंज करके ये बोलता हूँ, आप लोग अपना एरे यूजर से इनपुट लीजिए, इनपुट विल बी फ्रॉम द यूजर. सो अब इसको परफॉर्म कीजिए कि एरे ने आप लोग ने सबको ही एरे अपने आप से डिफाइन किया है. मैं हर एक में देखा हूँ कि एरे द नंबर हैव बीन डिफाइंड बाय यू पीपल, बट try to make it a dynamic. So take the input from the user, take the input from the user. So मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है सेम क्वेश्चन, only the input will be from the user and then do it. तो अभी आप लोग कीजिए, प्रोग्राम सेम है मेरा, बस इनपुट आपको यूजर से लेना है. तो आपको ये प्रोग्राम अभी करके दिखाना है कि राइट अ Python program to find the sum of an array taking the value from the user, taking the value from the user. तो आप लोग ट्राई कीजिए, जिनका हो जाएगा आप लोग मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आप लोग का कोड चेक करूंगा, या आप लोग का नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ. आप लोग यहाँ पे लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, कोई भी लिस्ट फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं. फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आप लोग हिंट दे देता हूँ तो आप लोग को करने में आसानी होगी. आप लोग यहाँ पे एक लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. लिस्ट फंक्शन को यूज करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, एक नाम कोई भी वेरिएबल आप लीजिए, ए बी सी एक्स वाई जेड, वहां पे आप लोग एरे साइज डिफाइन कीजिए. पहले जैसे हम लोग सी के बारे में सोचे तो क्या करते थे, पहले हम लोग एरे साइज डिफाइन करते थे, फिर हम लोग एरे में वैल्यू इंसर्ट करते थे. तो पहले आपको एरे साइज यहाँ पे भी डिफाइन करना होगा. तो आप लोग कोई भी वेरिएबल ले लीजिए ए बी सी, जहाँ पे आप एरे साइज को डिफाइन कीजिए. फिर उस एरे में आपने जो एरे साइज डिफाइन किया उस हिसाब से आप एरे में वैल्यू पुट कीजिए, उस हिसाब से आप अपने एरे में वैल्यू पुट कीजिए. और फिर लिस्ट आपने जो फंक्शन यूज किया है, लिस्ट फंक्शन आपने जो यूज किया है, उस लिस्ट को आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं. वहां पे एक टर्म्स होता है, सब फंक्शन होता है, लिस्ट डॉट अपेंड. अपेंड का मतलब एडिशन और सम ऑफ ऑल द नंबर्स. तो लिस्ट डॉट अपेंड, तो लिस्ट मतलब एक एरे में आपको जितना वैल्यू होगा हम उस सारे वैल्यू को अपेंड कर देंगे. अपेंड होने से आपका सारा वैल्यू कैलकुलेट एडिशन फॉर्मेट पे कैलकुलेट होगा, और फिर आपको उसको शो करना है. बस इतना करना है, ठीक है ना. ये एक प्रोसेस है, आप लोग कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन यूज द सम फंक्शन ऑल्सो. आप लोग कोई एरे डिफाइन कर लीजिए, फिर आप लोग सम फंक्शन यूज कर सकते हैं. सम फंक्शन पे आप सीधा एरे को प्लेस कीजिए. तो सम फंक्शन के अंदर आप एरे को प्लेस करेंगे तो एरे का जितना वैल्यू है वो सारा ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा. तो ये दो प्रोसेस आप लोग कोई भी फॉलो कर सकते हैं. तो डॉली आपका हो गया क्या? नो सर, वो पहले वाला था. ओके फाइन डॉली. तो होने के बाद आप लोग जरूर हैंड रेज कीजिए. सर हाँ रूपम बताओ. सर एक बार देख सकते हैं कोड? कौन सा कोड आप देखना चाहते हैं बताइए. ये अपेंड वाला. हाँ मैं दिखाऊंगा जरूर, मैं खुद दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना. तो पहले मैं देखता हूँ, अगर किसी का हो जाता है तो मैं देख लूंगा, नहीं तो मैं अपने तरफ से शो कर दूंगा आप लोग को, कोई इशू नहीं है. सर हम किए, एक बार देखना चाहेंगे? हाँ जरूर दिखाओ. ओके सर.
Okay, Rupam. Okay, list dot append sum of list. रूपम कोड को एक बार रन करो, शायद कुछ आउटपुट नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। कोड को एक बार रन करो, वहां पे जो ग्रीन प्ले बटन है उसको क्लिक करो। हाँ, नहीं आना चाहिए था, मैं वही बता रहा हूँ। No, yeah. हाँ, वही नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो तुमने लिस्ट डॉट अपेंड का यूज तो किया है, लेकिन लिस्ट फंक्शन Yes. को तुमने पहले डिफाइन नहीं किया है। पहले लिस्ट फंक्शन को डिफाइन करना होगा। फंक्शन Okay. बिना डिफाइन करने से तुम्हारा सब फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो पहले तुम्हें लिस्ट फंक्शन को डिफाइन करना है, जो कि पहले होगा एकदम ऊपर पे, नाम के पहले तुम्हें लिस्ट फंक्शन डिफाइन करना होगा, ठीक है ना। और लिस्ट फंक्शन तुमने जो यहाँ पे यूज किए हो, दैट इज माने LIST, so that is not the proper, the thing is LST equal to array or function you can add। so कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, that is not a function actually, we can call it as an array, we are defining an array। तो मैंने थोड़ा गलत बताया एक्चुअली कि फंक्शन नहीं, दैट इज लिस्ट डॉट अपेंड, दैट इज ओके, बट पहले आपको जो एरे, आपने यहाँ पे एरे नहीं डिफाइन किया है कहीं पे, पहले आपको एक एरे डिफाइन करना है। आपका एरे अभी तक डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो पहले आपको एक एरे डिफाइन करना होगा, तो आप एक पहले एरे डिफाइन कीजिए। देखिए आपने एरे कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, या आपको लग रहा है आपने कहीं पे एरे डिफाइन किया है यहाँ पे? No, sir. तो पहले आपको एरे डिफाइन करना होगा। तो फर्स्ट आप अपने एरे डिफाइन कीजिए, नाम के पहले एक एरे डिफाइन कीजिए आप। फिर आपका जो प्रोसेस है आपने लिखा है, फिर ओके है। फिर आपको जो प्रोसेस यूज करना है कि आपने लिया है, फिर आपने फॉर लूप भी यूज किया है, एंड इन रेंज टू द नाम, ओके। आपने नंबर्स भी यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ओके फाइन। देन अपने वहाँ पे नंबर्स को अपेंड किए हैं, और फिर आपने ओके। तो ये जो लिस्ट है, मैं अभी आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता हूँ। एकदम नाम के ऊपर जाइए, No. नाम आपने जहाँ पे फर्स्ट लाइन, एकदम फर्स्ट लाइन, नाम Yes, sir. नाम के पहले जाइए, एकदम मीन्स कर्सर को आप नाम पे ले जाइए। हाँ, एंटर। आप ऊपर लीजिए कर्सर को, राइट LIST, आपने जो यहाँ पे मेंशन किया मैं उसका सही करूंगा, LIST L. लिस्ट, LIST इक्वल टू, नहीं LST, सॉरी, वहां पे आपको LST दिखा रहा है, LIST नहीं लेगा। तो LST आप लीजिए, Yes. इक्वल्स टू, आप दो मीन्स फंक्शन ब्रैकेट यूज करते हैं, मीन्स थर्ड ब्रैकेट जो है, अब तो उसको क्लोज इन एंड क्लोज आउट कीजिए। थर्ड ब्रैकेट, नॉट फर्स्ट ब्रैकेट। ओके फाइन, हो गया। Yes, sir. अब नीचे आके आप वहाँ पे लिस्ट डॉट अपेंड, दैट इज ओके फाइन। आप जो वहाँ पे अपने नीचे सम के जगह पे आपने लिस्ट लिखे हैं, वहाँ पे LST कीजिए। Yes. ओके, अब रन करके दिखाइए कोड एक बार, देखते हैं क्या होता है। सिंटैक्स एरर एंड ओके, आपने लिस्ट के बाद वहाँ पे एक सेमीकोलन है, लिस्ट के बाद अपने में सम में आपने लास्ट ब्रैकेट के अंदर एक सेमीकोलन डाले हैं, उस सेमीकोलन को हटाइए पहले। सेमीकोलन नहीं, सॉरी, डबल इनवर्टेड कॉमा। आपने LIST के बाद रूपम, आर यू देयर? हेलो रूपम, शायद रूपम का कुछ नेटवर्क इशू है। सो रूपम, आर यू देयर? सो रूपम का कुछ नेटवर्क इशू है शायद। ओके, सो आई एम मूविंग फॉर डॉली। डॉली, हो गया क्या आपका? Yes, sir. Okay, so you can show me the code।
ओके ओके ओके, दिस इज द कोड एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं यही बता रहा था अभी कुछ देर पहले डॉली रूपम को। रन कीजिए। फोर 2 3 put any 4 values. Okay, 6 4 10 46. Okay, fine, Dolly. Now Pallavi. Pallavi. Okay. Okay, this is something new. Okay, Pallavi, run the code. Okay, put 4. Okay. Okay, Pallavi. One question is there that आपने 5 वैल्यू डाले हैं एंटर द एरे एलिमेंट पे, तो आपका एरे आपने Yes, sir. डिफाइन कहाँ पे किया है? इतना एरे 5 तक ही लेगा या 6 तक लेगा या 4 तक लेगा? ये सर वो डिफाइन नहीं किया मैंने सर, स्प्लिट फंक्शन का यूज किया जो मींस कॉमा ऐड कर देता है एलिमेंट्स में। हाँ वो तो पता है, लेकिन आपने यहाँ पे एंटर द एरे एलिमेंट पे आपने 5 वैल्यू डाले 1 2 3 4 5। अगर मैं 6 वैल्यू डालना हाँ। चाहूंगा तो यस सर, एक बार I 6 should वैल्यू have करके defined. 6 वैल्यू करके रन करके दिखाइए क्या होगा फिर। ओके तो यहाँ पे आपका वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है, दैट इज फाइन। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि एज ए यूजर मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कितना वैल्यू तक डाल सकता हूँ। आप प्रोग्राम लिखे हैं Yes, इसलिए sir. आपको पता चल रहा है कि मैं 6 के बाद एक कॉमा या कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज करने से ये नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा हमारा लाइन, राइट। लेकिन Yes, मैं sir. ऐसा यूजर पता नहीं चल रहा है कि मैं कितना तक कोड का कितना वैल्यू यहाँ पे डालना चाहिए मुझे, तो ये Yes, थोड़ा sir. करेक्शन कर लीजिए तो ये इट्स ओके, अदरवाइज इट इज ओके एंड समथिंग न्यू आई हैव सीन, दैट इज फाइन। Okay, sir. थैंक यू पल्लवी। नेक्स्ट आई एम मूविंग फॉर निशु। सुचित्रा आपका क्या हुआ, अभी तक कोड नहीं बना सुचित्रा? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मीन्स आउटपुट में थोड़ा सा मीन्स एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा है। ओके ट्राई करो, मैं बाकियों का देख के फिर देखता हूँ। निशु तुम अपना शो करो और तब तक हमारे यहाँ पे 2 और मैं देख रहा हूँ। प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार आपका क्या हालचाल है? ना आपका कुछ रेस्पॉन्सेस है, ना कुछ कोड्स आ रहा है आपकी तरफ से, ना कोई मैसेजेस, तो आप बस ज्वाइन होके क्या कर रहे हैं प्रिंस? और शुभम आपका कोड आज नहीं आ रहा है मेरे पास। शुभम आपका कोड नहीं आ रहा है मेरे पास। ओके तो तब तक मैं चेक कर लेता हूँ निशु का। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके ओके निशु रन द कोड। फोर वैल्यू okay Nishu, this is something new code also, some different method have been used. Okay, thank you Nishu. So Okay, so Dolly, Nishu and Pallavi have done. Next for Shikha. Shikha Kumari. एक्सक्यूज मी सर, Yes Suchitra से। एक बार मेरा देख लेंगे क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब मैं देखूंगा सुचित्रा, अभी फिलहाल ये लिंक डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो मैं आप लोग फिर से रिज्वाइन कीजिए, मैं फिर आपका तुरंत देख लेता हूँ, ठीक है ना? अच्छा सो मैं आई एम ठीक है। रिक्वेस्टिंग ऑल, so the link will be disconnected, so kindly reconnect again with the link, same link, then I am going to check the code of Shikha, Preeti and Suchitra, and also the what about the Prince and Shubham. Okay, I am disconnecting the link, rejoin with the link again.